Everyone needs compassion. Love is never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness. Witness of the Savior, the hope of the nation. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me. All my fears and failure, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. And now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. Mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shall I let the
Let's pray. Father, we just come before you this morning. We want to thank you for this day, and we want to greet you with a response for your love, Lord. We are so grateful for everything you've given us. Everything. Lord, we just want to thank you this day for all that you want to give us and for your care. Feed us with your word this morning and help us to understand all the good things that you have for us. And Lord, teach us to be faithful to you. Forgive us this day our sins, Lord. Provide for us. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. All right, so I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से प्रणाम करता हूँ I want you to open your Bibles with me to Matthew chapter 6, verse 24. और आप मेरे साथ जो है मत्ती का पुस्तक जो है अध्याय 6वां उसमें 26वां वचन है वो आप मेरे साथ पढ़िए 24th verse. 24वां वचन You know, we've been reading and studying through Matthew chapter 6, and there are a few verses I skipped, and this verse 24 is one of those verses. और ये जो 24वां जो वचन है इसको मैंने पहले नहीं पढ़ाया था उसको मैंने लेकिन आज मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ So, as I read in English, follow along with Hindi as my wife reads in Hindi. और जैसे ही मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ आप मेरी बीवी के साथ हिंदी में पढ़िए No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते The title of my message today is, Do you want to be a follower of God or money? तो आज का मेरा टाइटल है मैसेज का वो है कि आप किसकी सेवा करते हो Do you want to be a follower of God or money? आप किसकी सेवा करते हो God or money? परमेश्वर या पैसा You see, often, we come with this question should I do this for a little more profit? Or if I do this, I may get a little bit of money. And sometimes we're challenged in our hearts about, am I doing this just for money? Or am I doing this because God wants me to do this? बहुत बार ऐसा होता है कि हम यही देखते हैं कि हमको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा अगर ये करने से हमको कितना पैसा मिलेगा लेकिन बहुत बार हम दिल में ये भी सोचते हैं कि क्या सच में मैं पैसे के पीछे जा रहा हूँ You know, in this whole chapter, we see Jesus is talking to his disciples and he's challenging them to identify the true followers of God and the hypocrites in comparison with the hypocrites and the Gentiles. और यीशु मसीह ने बहुत बार अपने शिष्य को कहा कि कौन सच्चा परमेश्वर का शिष्य है वो जो दिखावटी करता है या वो जो दिखावटी नहीं करता लेकिन साफ साफ अपना जीवन को जीता है So chapter 6 is all about a true disciple and the way they should live. और ये जो अध्याय 6वां है इसमें बताया गया है कि एक सच्चा शिष्य क्या है और उसे कैसा रहना चाहिए See, we also know from Mark chapter 12, there was a time when the
priests, I mean, the Pharisees all came and asked Jesus Christ a question about whether they should pay taxes or not. They also brought the Herodians around. Mark chapter 12 is where we read that. अगर आप मरकुस का अध्याय 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या हमको टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए. They इसके basically बारे में want to trick Jesus, so that they can catch him. If he says, yes, you can pay taxes, they will all turn people against Jesus, saying, hey, look at him. He's a supporter of Herod. And if he says, no, you don't have to pay taxes, then they would say, Herodians, look at him. He's telling people not to pay tax to the Caesar. They basically want to trick Jesus. तो ये जो लोग थे फरीसी के लोग, ये बस जो है यीशु मसीह को अचंभे में डालना चाहते थे, परेशानी में डालना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कि क्या हमें टैक्स भरना चाहिए. अगर यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया कि हाँ भरना चाहिए, तो इससे ये होता कि वो जो हेरोडियंस लोग हैं उनका वो साथ देते और बोलते कि हाँ देखो ये हेरोडियंस के साथ दे रहे. अगर वो ऐसा बोलते कि नहीं हमें टैक्स नहीं भरना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके खिलाफ है और वो जो है जो केसर है उसका साथ दे रहे हैं. So Jesus told them to bring a coin and asked whose inscription is on it. And when they said Caesar, Jesus clearly said, give what belongs to Caesar, and give what belongs to God, to God. और तब जो है यीशु मसीह ने उनसे सिक्का पूछा और उन्होंने जब सिक्का को ऐसा ऊपर डाला, तब यीशु मसीह ने कहा कि किसका चेहरा इसमें आ रहा है. अगर ये केसर का चेहरा इसमें आ रहा है तो वो जो चीज़ है वो केसर को दे दो, और परमेश्वर की जो चीज़ है वो परमेश्वर को दो. Money is an integral part of life. और पैसा जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है. You have to accept that. और ये हमें मानना बहुत ज़रूरी है. But at the same time, money cannot be the most important thing in our life in comparison with God. और उसी के साथ साथ जो पैसा है वो महत्वपूर्ण, वो परमेश्वर से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे जीवन में. See, there was a man who saved all his money and he decided to build a farm, a barn, and then he want to fill that barn with completely all the wealth, so that he says, I will sit here forever and eat, and then the next day he dies. It is told as the rich fool parable. और एक बाइबल में एक जगह पे ये भी दिया है कि एक जो व्यक्ति था उसने अपना इतना सारा संपत्ति जो है उसने इकट्ठा करके रखा था और उसने ये सोच लिया था कि इसी से मैं अपने जीवन को जीऊँगा. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन वो मर गया और वो सब कुछ जो भी उसने बना कर रखा था वो सब उसके काम में नहीं आया. Jesus told that parable when a guy came and asked Jesus, saying, my brother is not giving me inheritance, please tell him to give it to me. That's when Jesus actually quoted and explained that parable. और ये उस समय हुआ जब एक व्यक्ति आकर यीशु मसीह से पूछा कि जो मेरा भाई है वो मुझे अपना संपत्ति का हिस्सा मुझे नहीं दे रहा, और उस समय यीशु मसीह ने ये इसके बारे में बताया. And Jesus also explained very clearly, saying, beware of all kinds of greed. और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि तुम जो है लालची ना बनो. I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना How चाहता do हूँ. you see money? आप पैसे को कैसे देखते हो? It's very important. ये बहुत ज़रूरी है. See, money might lead you to want more and more and more and more and more and more. जो पैसा है वो आपको बस यही करवाएगा कि आपको और ज़्यादा चाहिए, बस आप यही सोचते रहेंगे. In Matthew chapter 6 verse 24, Jesus used the word mammon. The word basically means material things. और अगर आप मत्ती का 6वां अध्याय में 24वां वचन में देखेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने धन के बारे में कहा है. वो इसका मतलब ये है कि हम जो शारीरिक चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं. Money, clothes, car, houses, all those things. जैसे कि पैसा हो या कार हो या घर हो, इसके बारे में. I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता See, हूँ. greed is not a problem only with rich people and people who have a lot of money and earn a lot of money. Greed is also a problem with poor people. और जो ये लालची होना जो है ये सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनमें ही नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि जो गरीब लोग हैं उनमें भी बहुत सारा लालच I've seen होता a है. lot of poor people who are very greedy. मैंने ये देखा है कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर भी बहुत सारा लालच है. They will cheat.
कभी कभी वो जो है धोखा देते हैं They will lie. वो झूठ बोलते They'll हैं, manipulate वो बातों को घुमाते हैं so that they can get more profit. ताकि उनको और ज्यादा फायदा मिल सके। You know, a couple of weeks before, we were distributing food, and somewhere a lady came that she wanted some food, and then when she came, she took 2 bags and no, she hid it. और ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ दिन पहले हमने जब किराना किसी को दिया तो बहुत से लोग आए थे किराना लेने के लिए, लेकिन उसमें से एक औरत ऐसी थी जिसने दो दो थैला लिया था किराना का और एक थैली को उसने छुपा लिया था अपने साथ। And she just came there begging, but then she took more than everybody else who ordered for it and who wrote their names. और उसने जो है आके हमसे किराना पूछा और बोला कि मेरे घर में कुछ नहीं है, प्लीज़ मुझे मदद करो। लेकिन उसने क्या किया, एक बैग के बदले में उसने 2 बैग ले लिया और एक को उसने छुपा के रख दिया। See, they wanted favor, but then they basically, are not taking as a favor. They are taking it as if, they can get it done by us. और उनको वो मदद के लिए आए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था वो मदद के लिए तो आए तो थे, लेकिन वो हमसे और ज़्यादा जो है ले रहे थे। Sometimes money will make you treat others like you are the boss. कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा होने के कारण आप यही सोचेंगे कि दूसरे जो लोग हैं वो मुझे एक मालिक की तरह समझें। Isn't that what the Pharisees and the Sadducees and the scribes were doing in Jesus' time to other people? तो ये क्या फरीसी जो लोग थे, जो सदूसीस जो लोग थे, उन लोग ने भी यही किया यीशु मसीह के समय। They wanted the best of the seats, best of the position, the greatest respect and honor because they had money. उनको सब कुछ अच्छा चाहिए था, उनको अच्छा जगह चाहिए था, बैठने के लिए अच्छा जगह चाहिए था, क्योंकि उनके पास पैसा था। And they were selling things in the temple for higher profit. और वो लोग मंदिरों में भी जो है सब कुछ जो है बहुत बढ़ चढ़कर उन लोगों ने पैसा जो है वो लेते थे परमेश्वर को भेंट करने के लिए। And Jesus spoke against them. और इसके लिए यीशु मसीह ने उनके खिलाफ बोला। See, you and I are called to be servants of God. आपको और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है उनका सेवक बनने के लिए। And even there, the Pharisees and the Sadducees and the scribes were supposed to be serving God. और तभी भी जो फरीसी लोग जो थे उन सबको जो है परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए थी। They were all upset when Jesus turned the table upside down. God was standing there. Jesus himself was standing there. The God whom they chose to serve, who called them to serve, is standing there, but they wanted to serve money, so they got upset with God. और यीशु मसीह जब उस मंदिर में आए तो देखा कि वहाँ पे जो है पैसे की लेन देन हो रही थी। ये देखकर यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन्होंने जो है टेबल को उलट फेर कर दिया। और तभी भी जो फरीसी लोग थे वो लोग यही सोच रहे थे, वो लोग तभी भी पैसे के पीछे थे और यीशु मसीह ने जो उनको कहा उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उनके खिलाफ आए। So the question was, do you want to be the boss or the servant? तो सवाल ये है कि क्या आपको क्या बनना चाहते हो, क्या आप मालिक बनना चाहते हो या सेवक? The Pharisees there wanted to be the boss. वहाँ के जो फरीसी लोग जो थे उनको मालिक बनना था। They didn't want to serve the kingdom or the people or God. वो लोग परमेश्वर के राज्य के पीछे नहीं चल रहे थे, ना कि उन्हें सेवकाई करनी थी। See, boss in this world means servant or slave or nobody in the kingdom of God. और मालिक का मतलब ये इस दुनिया में मालिक बनना का मतलब है आने वाले परमेश्वर के राज्य में आप कुछ भी नहीं है। If you want to be a servant, if you choose to serve God, you will be treated like a servant in this world, but in the coming kingdom, you'll be the boss. अगर आप इस दुनिया में सेवक बन के रहेंगे या परमेश्वर के सेवक बन के रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में आप मालिक बनेंगे। See, the boss mentality is to make everybody serve me. और मालिक का मतलब ये है कि इस दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि सब लोगों ने मेरा सेवकाई करना है। The mentality of a boss is to make everybody to serve him. और जो मालिक का जो मन है, जो उसका जो दिमाग है वो यही है कि सब लोगों ने आके मेरा सेवकाई करना है। But the servant mentality is to bless everyone by their service. लेकिन सेवक का जो सोच है वो ये है कि मुझे दूसरों की सेवकाई करनी है, मुझे दूसरों की मदद करनी है। Being useful to people, not just use people. बस उनकी मैं मदद कर सकूं ताकि मैं उनके कुछ काम आ सकूं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका कुछ फायदा उठाऊं। Again, I'm not talking about professional positions here. I'm talking about
the state of the heart here. मैं यहाँ पे कोई काम को लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्या काम करते हो, उसका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका दिल का स्थिति कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। Jesus saw the 2 mites of that poor woman, and he said that is the biggest offering of that time. और यीशु मसीह ने जो जो बूढ़ी जो औरत थी उसके पास जो 2 सिक्का था, उसने अपना सब कुछ उस दान पेटी में डाला। परमेश्वर उसके बारे में बोल रहे कि उसका दिल का स्थिति कैसा था। I want to ask you, whom do you serve, God or money? तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप किसकी सेवकाई करते हो, आप क्या बनना चाहते हो, मालिक या सेवक? It shows very clearly by the way you deal with money, by the way you handle money, whom do you really serve. It also shows very clearly what are you willing to do for money, and how far you are willing to go for money, and how far and how willing are you to do things for God. तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से आप पैसे को हैंडल करते हो, या उसकी रखवाली आप कैसे करते हो, अच्छे तरीके से, या आपको ठीक से आपको रखवाली करना नहीं आता। Your heart is seen very clearly by the way you treat money. आपका दिल जो है वो साफ साफ दिखाई देता है कि जिस तरीके से आप पैसे को संभालते हो। If you are willing to go to any extent to do anything for money, then you're a servant or serving money. अगर आप कोई भी हद तक पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है पैसे की सेवकाई कर रहे हो, You have made money as your God. क्योंकि आपने पैसे को अपना भगवान मान लिया है। And you can also, I am also wanting to say that such a person has made themselves to be also God. और मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि ऐसे जो व्यक्ति है वो अपने आप को भी भगवान मान लेते हैं, Because he wants all the money to serve himself. क्योंकि वो उसको सब कुछ वो पैसा चाहिए ताकि वो पैसा जो है उसका सेवा कर सके। 2 mites is better than millions. जो 2 सिक्का है वो करोड़ से भी ज्यादा अच्छा है। And if you are willing to go to any extent and do anything for God, then you are treating God as God. अगर आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो परमेश्वर के लिए आप सब कुछ करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना है। Guys, this is about faithfulness. यहाँ पे हमें वफादारी के बारे में बात कर रहा The हूँ। question is, who is your God? तो सवाल ये है कि आपका परमेश्वर कौन है? Are you willing to do anything for money, or are you willing to do anything for God? क्या आप पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, या तो फिर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? See, there was a guy in the book of Acts we read, his name is Barnabas. और एक व्यक्ति है जो अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्ति है जिसका नाम है बरनबास। He sold everything he had and gave it to the church, और उसके पास जो कुछ भी था उसने वो सब बेच के उसने कलेशिया को दिया, so that he can feed the people who are needy. ताकि जो जितने भी लोग हैं जिनके पास खाना पीना नहीं है, जिनको मदद की जरूरत है, उनको मदद मिल सके। There was another lady called Dorcas. She sewed things. You know, in Acts chapter 9, we read about her. She is given to the needy people. When she died, the women bring all the things that she did for them and shows in Christ. And then Peter prays, and that woman comes back to life. और एक औरत थी जिसका नाम है डोरकास। वो जो है उसने भी, उसके पास जो कुछ भी था उसने अपना सब कुछ जिनको भी मदद की ज़रूरत थी उनको दिया। और जब वो मरी तो बहुत से लोग आए उनके पास और बोला कि देखो मुझे इससे क्या क्या कुछ मिला है मुझे। तभी सब लोग जो है उसके बारे में अच्छा बोल रहे थे। When she died, people are talking good things about her and showing the things that she made. और जब वो मरी तो जब वो मरी तब लोग उसके पास आए और बोले कि देखो इतना सब अच्छा काम इसने किया मेरे लिए। You know, whom do you serve? तो आप किसकी सेवकाई करना चाहते Look हैं? at Barnabas and Dorcas. तो आप बरनबास को देखें और आप डॉरकास को They देखें। are good examples of servants of God. और वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है परमेश्वर का सेवकाई उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की। I was manipulated many times by people to get something from me. और बहुत बार लोगों ने मेरा भी गलत फायदा उठाया है ताकि उनको जो है मुझसे कुछ फायदा मिल सके। Are you a person who like to save a lot of money in your account?
क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो ये चाहते हो कि मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा आए और उसको उसको मैं बचत कर I सकूं? want to ask you, do you know what the Bible says about saving money? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि बाइबल में पैसे की बचत के बारे में क्या कहा गया है? Are you a person who is considering the Word of God to handle money? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन को लेकर आप जो है पैसे की बचत कर रहे हो? Are you earning the way the Bible recommends, or are you earning according to the Bible? Are you giving according to the Bible? क्या आप जब कुछ देते हो तो क्या बाइबल के अनुसार आप देते हो? Money versus God matters here. और धन और परमेश्वर यहाँ पे मायने रखता है। See, Jesus has come to people and is comparing God and money together. Money is never equal with God, but God is brought down so low by people because they have lifted money so high. और बहुत से लोगों ने परमेश्वर को इतना नीचे डाला है और पैसे को इतना ऊपर रखा है कि वो परमेश्वर को भूल गए। Religious leaders of that time were all about money. और जो तभी के धार्मिकता के जो लोग थे, जो लीडर थे, वो लोग सिर्फ पैसे के बारे में ही वो सोचते थे। Why is Jesus talking about money here? यहाँ पे यीशु मसीह पैसे के बारे में क्यों बोल रहे हैं? Because money could be a barrier or money could be a bridge in serving God. क्योंकि पैसा जो है वो आपके जीवन में बाधा भी ला सकता है, या तो फिर वो एक ब्रिज के समान हो सकता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो परमेश्वर के राज्य में। And you can help people give money to the work of God. और आप जो है उस पैसे से दूसरे की मदद कर सकते हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हो वो पैसे के द्वारा। Not just feed yourself and put yourself on with great clothes and show off as somebody very rich. ऐसा नहीं है कि बस आपके पास पैसा है तो आप दिखावटी करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और बताओ कि देखो मैं कितना अमीर हूँ। You need wisdom and good stewardship of money if you want to keep God as your God. अगर आपको आपके परमेश्वर को परमेश्वर रखना है तो आपके पास जो पैसा है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना आपको सीखना है। उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर ही आपको दे सकते हैं। Who gave you the house? आपको घर किसने दिया? God. परमेश्वर ने दिया। Who gave you that vehicle that you have? आपको गाड़ी किसने दिया जो आपके पास है? God. परमेश्वर ने दिया। Who gave you that job? आपको काम किसने दिया? God. परमेश्वर ने दिया। Lot of us are not happy to go for a job. बहुत से लोग खुश नहीं हैं काम करने के लिए, उनको जॉब पे नहीं जाना पसंद। Imagine if you didn't have a job. अगर आपके पास जॉब नहीं है, Were you like that sometime? क्या आप वैसे थे पहले? Then think about it. तो आप ये सोचें How was it? कैसा था जब But आपके पास जॉब now, नहीं but था। now God has given you a job. You enjoyed it for 3 months and then you're unhappy. लेकिन अभी आपके पास काम है और परमेश्वर ने आपको दिया है वो काम, अभी 3 महीने हो गए, उसके बाद आप खुश नहीं है। You know, in the job, if you get a good salary, you're happy. अगर आपको वो काम में अगर आपको ज़्यादा तनख्वाह मिलता है या प्रमोशन मिलता है तो आप खुश हो जाते हो। And if you have to give more in a particular month to the church, you're not happy. लेकिन अगर आपको वही जो पैसा है अगर चर्च को देना है या कलेशिया को देना है तो आप खुश नहीं होते। Do you like power and pride? Then you're going to actually serve money. अगर आपको सामर्थ्य चाहिए और घमंड अगर आपको चाहिए तो मतलब ये है कि आप पैसा को पसंद करते हो और आप पैसे का सेवकाई कर रहे हो। Humility and service, if that is what you have in your heart, then you will serve God and not money at any point. अगर आपके दिल में नम्रता है और आप जो है सेवकाई करना चाहते हो दूसरे का, इसका मतलब ये है कि आप पैसे को ज़्यादा नहीं मानते लेकिन आप परमेश्वर को आपने वो स्थान दिया है। So what attracts you? तो आपको क्या जो है आपको क्या खींचता है? And what projects are you interested in? तो कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहते हो? See, to serve God, you don't need money. देखो, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है And to serve money, you don't need God. और पैसे का सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Opposites. ये बहुत ही क्या बोलते हैं एकदम उल्टा है। That is why Jesus brings it
to the point and discusses with his disciples. इसीलिए यीशु मसीह ने ये जो वचन को लाया और उन्होंने अपने शिष्य को ये बताया। Money was not a problem, money is not a problem only today. Money, compared with God, has been a problem for generations. ये पैसे का जो प्रॉब्लम है या समस्या है ये आजकल का ही नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी पैसे का समस्या रहा है। See, like you agree that everything belongs to God, जैसे आप मानते हो कि ये सब कुछ परमेश्वर का है, then who are you and me? तो आप और मैं कौन हूँ? All these things that we have, why are they given to us? और ये सब कुछ जो हमारे पास जो है वो हमें क्यों दिया गया है? So that we can be caretakers, ताकि हम उसकी रखवाली कर so that सकें, we can be good managers, ताकि हम उसको अच्छा हम जो है उसका ख्याल रख सकें, so that we can be good stewards of those things. ताकि उसका हम अच्छे से ख्याल रख सके, उसे ठीक से रख सके। I have a question for you. अभी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। What's your feeling about giving? आप क्या सोचते हो देने के बारे में? Are you excited about your salary? क्या आप आपके तनख्वाह को लेकर बहुत ही खुश हो? When your salary falls into your account on the 30th or the 10th or the 15th of the month? जब आपका तनख्वाह आता है आपके बैंक अकाउंट में तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. You feel good. आपको अच्छा लगता है। But do you have the same feeling when you give? लेकिन जब आप किसी को देते हो तो आपको अच्छा लगता है देने के लिए? That's the point here Jesus is driving. और यही जो है यहाँ पे यीशु मसीह पूछ रहे हैं। Do you like to pay back the loans you have taken? क्या आपने जो भी कर्जा उठाया है उसको वापस चुकता करने के लिए आपको अच्छा लगता है? Are you a faithful steward of the money that God has given you? क्या आप वफादार हो? जो भी पैसा आपको परमेश्वर ने दिया है उसको आपने ठीक तरीके से उसका इस्तेमाल किया है? First and foremost, if you want to be serving God and not money, you have to understand this. सबसे पहली बात, अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो और पैसे का नहीं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है That I own nothing in this world. Everything is owned by God. कि मेरा यहाँ पे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ परमेश्वर का है। I am just given to earn and share and enjoy and give. बस मुझे यहाँ पे मेरे पास जो कुछ भी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मुझे दूसरों को देने के लिए मुझे उसका इस्तेमाल If करना I share and care, that's true enjoyment. अगर मैं शेयर करूँगा या मैं किसी के साथ उसको शेयर करूँगा या किसको दूंगा तो उसी से हमें खुशी मिलती है। God, the God of your money also. क्या आपका परमेश्वर आपके पैसे का भी परमेश्वर है? Turn with me to Malachi chapter 3, verse 8 onwards. आप मेरे साथ मलाकी का अध्याय 3 में आए। You may say, Pastor, this portion is for the Old Testament people. आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो वचन है ये पुराने जो नियम के जो लोग हैं जिसके पीछे वो चलते हैं उनके लिए है। Let me read that, you'll understand. लेकिन मुझे ये आपको पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। So, verse 8 onwards. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? And God says, in tithes and offerings. 8वां वचन में यहाँ पे ऐसा दिया है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात से तुझे लूटा है, दशमास और उठाने की भेंटों में। You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। You may tell me, Pastor, this tithe is about Old Testament believers, it's not for us. आप बोल सकते हैं कि पास्टर ये जो दशमास के बारे में जो कहा गया है ये सिर्फ जो पुराने जो विश्वासी थे उनके लिए है। Tell you, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ you're right. कि आप सही हैं। But in the New Testament, it's about giving everything, not just 10%. और नए नियम में देखेंगे तो वहाँ पे अब हमें अपना सब कुछ देना है, सिर्फ 10% नहीं देना है। So, the best way to say it is to start giving with 10%. तो सही तरीका मैं ये बोलूँगा बोलने का कि आप जो है 10% से आप शुरू करें देने के लिए। My testimony. मैं आपको मेरा गवाही बताना चाहता हूँ। See, the first time I paid tithe, I was around 19 years old. पहली बार जब मैंने दशमास दिया था तब मैं 19 साल का था। The first salary I got was 3,500 rupees. पहला जो पगार मुझे मिला था वो था 3,500 रुपए। And I gave 400 rupees of that. और तब मैंने 400 रुपया जो है दशमास में दिया। And I grew up in income. Probably in a span of 7 years, I grew up so much that
my last tithe when I was working was around 30,000 rupees a month. और मैं दशमांश देते रहा और उसके बाद मुझे याद है कि जो पिछला जो मेरा जो जॉब था, जो काम मिला था, उसमें मेरा 30,000 जो था वो मैंने दशमांश दिया। Why do I say that? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? See, God is faithful to give you. मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे वफादार है और वो आपको देते हैं। When you're giving, to God, He will bless you more and more, and you will only be in an increasing graph. क्योंकि जब आप परमेश्वर को देते हो तो वो आपको आशीर्वादित ही रहेगा और आप देखेंगे कि आपका जो जब पैसा आता है वो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। Why? क्यों? Because now we will see this application of this verse will also be in the New Testament time. क्योंकि आप देख सकते हो कि यही जो वचन यहाँ पे बताया गया है पुराने नियम में, हम नए नियम में देखते हैं कि किस तरीके से जो है परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी है। See, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। So basically God says you give so that there will be money, there will be food in my storehouse, as simple as that, for the work of God, for the service of God, for the servants of God. और यहाँ पे परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं कि जब तुम दशमांश लेकर आते हो तो परमेश्वर के भंडार से परमेश्वर आपको देते हैं। And here is where Barnabas becomes an example. और यहीं पे हम नए नियम में देखते हैं कि बरनबास जो है एक उदाहरण बनकर हमारे सामने आते हैं। Cornelius is an example. कोर्नेलियस जो है वो एक हमारे लिए उदाहरण है। Lydia is an example. लीडिया है वो हमारे लिए एक उदाहरण है। Dorcas is an example. और डोरकास जो है वो हमारे लिए एक उदाहरण है। All the disciples, the 12 disciples of Jesus Christ, they are good examples. They gave everything and then walked behind Jesus. और यीशु मसीह के जो शिष्य है वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और वो यीशु मसीह के पीछे चले। Here the requirement for you to give the tithe by God is that if you don't give, you're robbing Him. और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप दशमांश नहीं देते हो परमेश्वर को, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को से चोरी कर रहे हो। And if you're giving tithe, it's basically for the work of God. So in the New Testament, it has to be applied the same way, that you must give for the work of God. और उसी तरह जब आप परमेश्वर को दशमांश देते हो तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए आप देते हो। अगर हम नए नियम में भी देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम दो, ताकि जब तुम देते हो, जब तुम्हारा धन या पैसा तुम देते हो तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए तुम इस्तेमाल करो। See, we are now studying the principles of handling money. और अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हमें पैसे को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। Provide for the work of God. परमेश्वर के काम के लिए तुम दो। It could be any of your material things. चाहे वो तुम्हारा कोई भी, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो तुम वो दे सकते हो। And give for the needy. और जिनको मदद की जरूरत है उन्हें तुम दो। Not always in the church. You can also give outside the church. जरूरी नहीं है कि तुम्हें कलेशिया में ही देना है, लेकिन कलेशिया के बाहर अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है आप उनकी मदद करो। But don't compare. I have given there, should I give it here? Oh, I have given there, should I also give it here? If I give there and here, then how much money am I losing? ऐसा मत सोचे कि अच्छा ठीक है मैंने बाहर लोगों को दिया है तो क्या मुझे कलेशिया में भी देना चाहिए। अच्छा ठीक है मैंने वहाँ पे पैसा दिया तो मुझे यहाँ पे नहीं देना चाहिए। या तो फिर आप सोच रहे हो कि अरे इतना सारा पैसा मेरे हाथ से गया है, मैंने उनको भी दिया है, अभी मुझे कलेशिया को भी देना है। ऐसा नहीं सोचना है। तो 2 Corinthians chapter 9 verse 6. अभी आप मेरे साथ जो है दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 9 जो है उसमें 6वां वचन में आप आए। 2 Corinthians chapter 9 verse 6. दूसरा कोरिन्थियों का अध्याय 9 वचन 6वां। Listen to this carefully. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Verse 6 and 7. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6वां वचन में ऐसा लिखा गया है कि परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Amen. You see, this is the criteria.
तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका दिल ऐसा होना चाहिए। Giving without grudging. ये आप जब देते हो तो बिना कुड़कुड़ किए या चिड़चिड़ किए आपको देना है। Not out of necessity. I have to, man. ऐसा नहीं है कि अरे मुझे देना है इसलिए मुझे देना है। No, God loves a cheerful giver. परमेश्वर हमेशा उनको प्रेम रखता है जो पूरे मन से पूरे दिल से देता है। See, God is not depending on us. देखो परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, We are depending on Him. हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर He हैं। provides us. वो हमें देते हैं And we are faithful in providing for His work. और इसीलिए हम वफादार बनते हैं कि हम उनके कामों के लिए हम वो दान दें या See, पैसा दें। come back again to Malachi. अभी वापस से आप मेरे साथ मलाकी में आए Chapter 9. और Sorry, chapter 3. Malachi chapter 3. मलाकी का अध्याय 3 में आप आए And second part of verse 10. और उसी में जो है दूसरा भाग है वचन 10 में आप आए। Try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर और आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। You know, God is challenging you and me, saying, give and see. और यहाँ पे जो परमेश्वर है वो हमें यहाँ पे चैलेंज करते हैं, बोलते हैं कि तुम देकर तो देखो, That there will not be room enough to receive it. क्योंकि जब तुम देते हो तो तब तुम्हारा जो रूम है वो इतना भर जाएगा कि तुम समा नहीं पाओगे। I had a friend who taught me how to give. मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे सिखाया कि कैसे देना चाहिए। In fact, a pastor also taught me. I just learned from them by the way they give. और मैं एक पास्टर से सीखा है, जिस तरीके से वो दूसरों को देते हैं उनसे मैंने सीखा। And once I didn't have money when I went to the church to come back home. एक दिन ऐसा था कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं चर्च में गया था लेकिन चर्च से वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं So this थे। pastor saw me and he found out what something is wrong. तो ये पास्टर ने मुझे देखा और उसको पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। And he called me and he asked me. I told him the problem. और तब उन्होंने मुझे बुलाया और तब उन्होंने मेरा समस्या पूछा और मैंने उनको मेरा समस्या बताया। And he went to his room. और वो अपने रूम में गए, He took me inside वो मुझे अपने रूम में लेकर गए, and he closed the door उन्होंने दरवाजे को बंद कर and he दिया। put his hand inside his pocket उन्होंने अपना जो हाथ है अपने पॉकेट में डाला and he told me, give me your hand. और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा हाथ आगे रखो। And he took the money full of his hand and put it on my hand and covered it and said, this is yours. और उन्होंने अपने पॉकेट में से पैसा निकाला, जितना भी उनके हाथ में आया वो पूरा निकाल के उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया और बोला तुम जाओ। His name is Boaz. उनका नाम है बोआज। And then he prayed for me. और वो मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। And he prayed that, Lord, never in this hand, there'll be anything that is lacking. और तब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और बोला कि ये हाथ में कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो, इनका हाथ हमेशा भरा हुआ रहे। And it happened so. और ऐसा हुआ। And then there was another friend of mine. और एक मेरा दोस्त था, He taught me a lesson. उसने मुझे सिखाया। His name is Joshua. उसका नाम है जोशुआ। You know what he said? पता है उसने क्या कहा? See, when we give in our hand size. देखो जब हम देते हैं तो हम अपने हाथों के साइज के अनुसार हम देते हैं। And when God gives, He gives in His hand size. लेकिन जब परमेश्वर हमें देते हैं तो वो उनके हाथों का साइज के अनुसार वो हमको देते So हैं। test God in this. This is God's challenge for you. तो यहाँ पे परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि आप परमेश्वर को टेस्ट करके देखो, परीक्षा लेकर देखो, और जो है परमेश्वर आपको ज्यादा ही देंगे। I'm not saying I'm an example to you. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ पे उदाहरण I'm हूँ। just saying I have seen the faithfulness of God by just giving, and He has only increased His portion for me. मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने परमेश्वर का वफादारी देखा है कि जितना ज़्यादा मैंने दिया है परमेश्वर को, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे आशीर्वादित किया है, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे दिया है। See, if you see here, come back again to 2 Corinthians chapter 9. अगर आप फिर से दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 9 में आएंगे तो आप ये देख सकते Verse हैं 8. 8वां वचन में। And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुयातात से दे सकता है, जिससे हर बात
में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। If you have time, just read through the rest of the verses. अगर आपके पास समय है तो आप ये पूरा वचन जो है उसे पढ़ लें। These will be principles for which you can, through which you can give. और ये सब कुछ यहाँ पे कैसे आपको देना है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। So to see God's faithfulness तो आप देखते हो कि परमेश्वर हमारे वफादार हैं and to receive abundance और ज्यादा हमें लेने के लिए and to have sufficiency and contentment, give to God. अगर faithfully. आपके जीवन में संतुष्टि चाहिए या आप चाहते हो कि आपके जीवन में भरपूर आपको आशीर्वाद मिले तो उसके लिए आपको परमेश्वर को देना सीखना है। See, you save your money in the bank because you trust the bank and your money more. आप जब बैंक में पैसा डालते हो इसलिए डालते हैं क्योंकि आप आपके पैसे के ऊपर भरोसा करते हो और उस बैंक के ऊपर भरोसा करते हो। It's good. It's not wrong. Saving is good. अच्छी बात है। The Bible teaches us to save money. हाँ, बाइबल में कहा गया है कि हमें पैसे की बचत करनी चाहिए। But do you trust God or your money? लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो या पैसे के ऊपर विश्वास करते हो Or on yourself? या तो फिर अपने आप के ऊपर वो विश्वास करते See, if you trust God, then if you know He is trustworthy, you'll trust Him and give your money to Him. अगर आप ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हो उनके ऊपर विश्वास करते हो तो आप आपका पैसा परमेश्वर को दोगे क्योंकि आपको मालूम है कि परमेश्वर जो है भरोसेमंद है। He is trustworthy. क्योंकि वो भरोसेमंद He है, keeps His promises. वो अपना वादा को रखते हैं And He is a God who has all knowledge and everything belongs to Him. और वो हमारे परमेश्वर है जिनके पास ज्ञान है, बुद्धि है और सब कुछ उनका है। And if you see, He is capable of giving you in abundance. और आप देख सकते हैं कि वो ही आपको भरपूर दे सकते हैं। Turn with me to the book of Haggai. और अभी आप मेरे साथ जो है हगाई के पुस्तक में आए And you come to chapter 1. और उसमें जो है आप जो है अध्याय पहला में आए And let's read verse 5 and 6. और हागे का जो पुस्तक है उसमें पहला अध्याय में 5वां और 6वां वचन हम। Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. इसलिए सब सेनाओं का यहोवा यो कहता है अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। And verse 6. और 6वां वचन में कहा है You have sown much and bring in little. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थाली में रखता है। Do you feel like this? क्या आपको ऐसा लगता है? Do you have a job and still you have financial problems? क्या आपके पास काम है लेकिन फिर भी आप पैसे की तंगी है आपके अंदर? The problem is disobedience. वो इसके लिए है क्योंकि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। Are you losing things even after earning more money? पैसा कमाने के बाद भी आप बहुत कुछ गंवा रहे हो। It's because you're disobedient. वो इसलिए है क्योंकि आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। See, giving to God is an obedience. It's not just you're appreciating what God has given you. परमेश्वर को देना इसका मतलब ये है कि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, ये नहीं है कि हाँ मेरा इसलिए मुझे परमेश्वर को And it's not also a thoughtful act. और ये ऐसा नहीं है कि मुझे सोच समझ कर देना है। No, it's not that I'm thoughtful that God gave me. I'm just giving back to Him. हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ परमेश्वर ने मुझे दिया इसलिए मुझे परमेश्वर को वापस देना है। You know, He's giving me, so I have to also give Him. Like, consider it. जैसे कभी कभी हम सोचते हैं हाँ परमेश्वर ने मुझे दिया इसलिए मुझे देना है। Actually, all those things are there, but the main thing here is giving to God is an obedience to His word. हाँ, ये सब कुछ जरूरी है लेकिन परमेश्वर को देना इसका मतलब ये है कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें। You don't have enough probably in areas of your life, though you have good income coming and you're losing things here and there, is because probably you're not obedient to God in your finances. हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, आप कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। उसका कारण ये है कि आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। अपने पैसे को लेकर आप जो है आप सही वफादार नहीं हो। Maybe you're feeding yourself with things that doesn't feed your hunger.
हो सकता है कि आप जो है उस पैसे से अपने आप को आप जो है अपने आप के ऊपर खर्च कर रहे हो और उससे आपका जो भूख है वो नहीं मिट रहा। Maybe you're wearing great expensive clothes which is not taking care of yourself. हो सकता है कि आप जो है महंगी महंगी वस्तुएं खरीद रहे हो और इसलिए आपके पास कुछ नहीं बचता। You know, the point is God gave you a job. लेकिन ये सवाल ये है कि परमेश्वर ने आपको काम दिया है। He gives you strength to go every day for the job. उन्होंने आपको वो ताकत दिया है ताकि उस ताकत के अनुसार आप जाके काम कर सकें। He's given you a roof over your head. परमेश्वर ने आपको छत दिया है ताकि He's आप वहां पे रह given सकें। food on the table. परमेश्वर ने आपको खाना दिया है टेबल में लाकर। Be obedient to God. तो इसलिए परमेश्वर का आज्ञा का पालन करो। See, God is omniscient. God is omnipotent. हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, So trust Him. तो उनके ऊपर विश्वास The करो। question here is, तो सवाल ये है, whom do you serve? आप किसकी सेवा करते हो? Whom do you trust? आप किसके ऊपर विश्वास करते हो? God परमेश्वर or money? या पैसा? God परमेश्वर or your job? या तो फिर आपका काम? God परमेश्वर or yourself? या अपने आप के ऊपर? God परमेश्वर or your bank account? या तो फिर आपका बैंक अकाउंट? God परमेश्वर or money and या gold? या पैसा या सोना चांदी? God परमेश्वर or land? या ये जमीन? 10%, 10%। very simple, is the starting of your giving. 10% जो है आपका स्टार्ट होना चाहिए देने का। If God puts in your heart to give 100%, go for it. अगर परमेश्वर आपके दिल में डालते हैं कि 100% दो तो आप 100% दें। I want to tell you, I have a practice. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। See, every time I got a new job or a salary hike, I made sure that I give the first month salary to the church or to God. जब भी मुझे नया काम मिलता या मुझे काम में अगर मुझे प्रमोशन मिलता या मेरा तनख्वाह बढ़ता तो उस समय में पहले महीने का जो पगार है वो पूरा का पूरा मैं परमेश्वर को देता। And it was a blessing for me. और उसकी वजह से मुझे बहुत आशीर्वाद And मिला। even as a pastor today, I have my house filled with things. I don't have to worry about anything. और आज भी अगर आप मेरे घर पे देखेंगे तो मेरे घर में सब कुछ है और मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। See, if you are going to store money and earn money, you don't even know how fast and how quicker you will lose all the money. अगर आप पैसे को बचा कर रखते हो, संभाल कर रखते हो, उसको खर्चा नहीं करने पर भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ पर और कैसे गए। You may even lose it even before you thought it's there. और आप उसको जो है आप गवा सकते हो। आपने सोचा है कि नहीं मेरे पास है, लेकिन आपने देखा तो आपके पास कुछ नहीं है, वो सब कुछ खर्च हो गए। Turn with 1 Chronicles chapter 29 verses 12 and 14. और आप मेरे साथ जो है पहला इतिहास का 29वां वचन में 12 में हम पढ़ेंगे। Both riches and honor come from you. You reign over all. In your hand is power and might. In your hand it is to make great and to give strength to all. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, सभी के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। But who am I and who are my people that we should be able To be able to offer so willingly as this, for all things come from you, and of your own we have given you. मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। You see, this is the heart of David, और यही यहाँ पे दाऊद का दिल था, the King David. जो राजा था And दाऊद। we saw Barnabas, King David, we saw Dorcas, we see all these disciples. This is the heart of giving. और हम देखते हैं यहाँ पे जो राजा दाऊद है उसका दिल कैसा था, बरनबास का दिल कैसा था, डॉरकस का दिल कैसा था, या परमेश्वर के जो शिष्य थे, यीशु मसीह के शिष्य, उनका दिल कैसा था। Brother, sister, if you're willing to give with a cheerful heart, I'm telling you, your storehouses will be full. That's what God's promises in Malachi chapter 3 verse 10. और भाइयों बहनों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने दिल से और पूरे खुशी से अगर आपने परमेश्वर को दिया या परमेश्वर के राज्य को दिया तो परमेश्वर अपने भंडार से आपके घरों को, अपने रूम को भर देंगे। और जैसे कि परमेश्वर ने मलाकी का अध्याय 3 10वें वचन में कहा है वैसा।
that there will not be room enough to receive it. कि आपका रूम इतना भर जाएगा कि आपके पास और लेने के लिए जगह नहीं होगा। And some of us save money because of security. और कुछ लोग जो है पैसा को बचा कर रखते हैं अपने खुद के भविष्य के लिए। It's okay. हाँ ठीक है, But I want to ask you, is money your security? तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका पैसा ही सब कुछ है? Because security comes from the Lord. क्योंकि जो हमारा जो भविष्य है, जो हमारा सिक्योरिटी है, वो सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। Verse 11 of Malachi chapter 3. और अभी आप मलाकी का ही अगर अध्याय 11 में अगर आप आएंगे, And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. और अगर हम मलाकी का ही अगर हम देखते हैं 11वां वचन में, उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि का उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। See, God will keep His word. और परमेश्वर अपना वचन को रखेंगे। If you give faithfully with a cheerful heart and obedience, God will make sure that you won't have losses. Nobody can take things away from you. अगर आपने सब कुछ परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर वफादार है कि वो आपको कभी भी आपको नुकसान नहीं कराएंगे, वो आपको हमेशा बढ़ोतरी देंगे। So where does security come from? तो हमारा जो सिक्योरिटी है कहाँ से आता है? Security comes from the Lord. वो सिर्फ परमेश्वर से आता है। So God will never lead you into debts that you cannot afford. और परमेश्वर कभी भी आपको कर्जे में नहीं डुबाएंगे जो आपके लिए नहीं होगा। You see a house, it's nice, आप एक घर को देखते हो, वो अच्छा है, or a TV or a car या टीवी को देखते हो, कार को देखते हो, or a vehicle, या गाड़ी को देखते and you हो, see a rich man having it, और आप देखते हो कि एक अमीर व्यक्ति के पास ये सब कुछ है, and you want to own it, और आप चाहते हो कि मुझे भी ये सब कुछ चाहिए, and you come home and pray for it, और आप घर पे आते हो, प्रार्थना करते हो, and go to the bank and ask for a loan. और आप बैंक में जाते हो, कर्जा पूछते हो, They are also willing to give, वो भी आपको देने के लिए तैयार है, but you buy it, लेकिन आप खरीदते हो, you're not able to afford it. आप वो नहीं खरीद सकते, लेकिन बैंक के द्वारा आपको पैसा And मिलता you're है, not paying the EMIs properly, the loan properly. लेकिन आप उस कर्जे को ठीक तरीके से चुका नहीं पाते हो, They'll take it and go. तो वो लोग वो आपका जो भी वस्तु है उसको लेकर वो चले जाएंगे, You'll be in bigger shame. और उसके बाद आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे। So don't try to take loans on things that you cannot afford. तो ऐसे चीज़ों के ऊपर आप कर्जा ना ले, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जा लेते हो, तो ऐसा ना करें, You're making a mistake. क्योंकि आप गलती कर रहे हो। Count before you get involved in something. कोई भी चीज़ में जाने से पहले आप सोच ले। If you can buy it without loans, great. अगर आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो बिना कर्जे के तो अच्छी बात है, But if you have to take a loan, let's say a house or something, अगर आपको कर्जे में लोन में अगर आपको कुछ लेना है, जैसे कि घर, possible. हाँ हो सकता है, But count your income. लेकिन सबसे पहले आप कितना कमाते हो वो देखें, Be wise. बुद्धिमानी से काम करें। Let's finish with 2 Corinthians chapter 9 verse 8. और अभी हम जो है दूसरे कोरिन्थियों का जो है 9वां अध्याय 8वां वचन में हम इसे खत्म करेंगे। And God is able to give all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Do you believe me or not? That's basically what Jesus is asking. और यहाँ पे यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो या नहीं। In Matthew chapter 6. मत्ती का अध्याय 6वें में। So now I want to ask you a question. और मैं आपसे अभी ये सवाल पूछना चाहता Do हूँ, you believe in Jesus or not? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं? Do you count the money or do you count the blessings you receive from God? क्या आप पैसे को गिनते हो या आप परमेश्वर का आया हुआ आशीर्वाद को गिनते हो? Do you want to have money in your account? क्या आप पैसे को अपने अकाउंट में क्या आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में पैसा आए, More? ज्यादा आए, Or do you want God to be on your account? या तो फिर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट में परमेश्वर आए? Do you want to be the boss or servant? आपको क्या मालिक बनना है या सेवक बनना है? Do you want to be a follower of
God or money? तो आपको किसके पीछे चलना है? पैसे के पीछे चलना है या परमेश्वर के पीछे चलना है? That's the question. और वो सवाल है, God versus mammon. परमेश्वर और मनुष्य, God versus mammon. परमेश्वर और धन। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just come before you this evening. हे परमेश्वर पिता, हम ये शाम को आपके पास आते We हैं। pray you bless us. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीष दें, Help us हमारी मदद करें to be wise. कि हम बुद्धिमानी बने। Teach us your ways. हमें तेरी रास्ता हमें तू सिखा। Forgive us for being disobedient. हमें माफ करके हमने तेरे आज्ञाओं का पालन नहीं Lord, किया। sometimes we consider spending all our money for our needs and wants, and then we think, okay, how much is remaining I can give to God? बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरा पैसा खर्च करने के बाद जो बचता है हम सोचते हैं कि इसमें से मैं कितना परमेश्वर को दूं। Lord, you've already blessed so many of us with abundance. परमेश्वर, अब तक आपने हमें इतना आशीर्वाद दिया है, भरपूर दिया है। Give us a heart to share and give to others. हमारा दिल ऐसा कर दे कि हमारा दिल जो है, जो कुछ भी हमारे पास है, हम उसे दूसरे को दान में दें। Help us, Lord, हमारी मदद कर, to rely on you. ताकि हम तुझ पे हम जो है निर्भर रह सकें। Lord, you're our Father in heaven, तू हमारा परमेश्वर पिता है स्वर्गीय, who provides for the birds, who provides for all animals, who provides for every living being. जिसने पक्षियों को दिया है, जिसने जानवरों को दिया है, सभी पृथ्वी में भरे हुए लोगों को तूने दिया है। Lord, you will not forget me. और मैं मानता हूँ परमेश्वर कि तू मुझे नहीं भूलेगा, Thank you for your promises. और आपके वादाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। And we believe in your word. और हम तेरे वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, Trust you. हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं। Help us in Jesus' mighty name, I pray. हमारी मदद कर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Thank you for joining us. धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा जो मैसेज है वो पसंद आया है और आप इससे आशीर्वादित हुए हैं। अगर आप इससे आशीर्वादित हुए हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है सिंपली बाइबल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को आप प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चाहे तो फेसबुक में भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।